Good morning, students. I am sending you the details of question answers so that it will be helpful for you to understand the chapter very well. Okay. So as you are having notes in your notebook, so first is chapter 10. मैं आपको चैप्टर नहीं पूरा भेज रही हूँ, आपको जस्ट क्वेश्चन आंसर्स पे बता रही हूँ सो दैट क्वेरीज हैं जो क्लियर हो जाए. फिर भी इन केस एनी ऑफ क्वेरीज देयर जस्ट राइट अ मैसेज. First question is differentiate between endocrine and exocrine gland. So those who have attended live class, we have discussed there कि endocrine glands कौन सी होती हैं और exocrine glands कौन सी होती हैं. Endo, as the name indicating, endo का मतलब ही होता है internal, ठीक है, and exo means outer, external. So that internal external is not that out of the body or inside the body. These terms are related within the body. So वो वाली glands, the glands which secretes chemicals called hormones directly into the blood and reach the target site where they are required. तो endocrine glands कौन सी glands हैं जो वो hormones secrete करती हैं, जो direct में जो भी hormone को secrete करती हैं direct blood में जाती हैं and reach the target site. Target site is what? Where they have to react या where they have to act, जहाँ पे action होता है वहाँ पे. So for example, pituitary gland, adrenal gland, thyroid gland, इनका फंक्शन क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन है दे रिलीज ग्रोथ हार्मोन्स. सो ग्रोथ हार्मोन मीन्स अब टारगेट साइड इनकी कौन सी होगी? द ऑर्गन्स जहाँ पे ग्रोथ होती है लाइक लेग्स, आर्म्स, फाइन. सो ऑन द सेम वे एडर्नल विच सीक्रेट एडर्नलिन हार्मोन विच मैनेज स्ट्रेस इन द बॉडी एंड थायराइड ग्लैंड विच सीक्रेट्स थायरॉक्सिन हार्मोन टू मेंटेन द लेवल ऑफ आयोडीन. Next is exocrine, the gland which secretes hormone into the ducts. Ducts को हम कहते हैं the tubes, the pipes, small pipes present in the body. तो जो ducts में करती हैं जैसे कि salivary gland, sweat glands. जो sweat gland है ये कभी भी हार्मोन को ब्लड में सीक्रेट नहीं करती है, डक्ट में करती है. On the same way salivary is. Question number 2. Why is pituitary gland also known as a master gland? Pituitary gland को master gland क्यों कहते हैं? Master gland doesn't mean कि pituitary gland सबसे बड़ी या largest gland होती है, but इसके जो functions हैं that is major. Pituitary gland is located in the brain. It stimulates growth and development hormones. Thyroid gland to produce thyroxine, testes and ovaries to produce their hormones. So as it stimulates other glands to function, that is why it is called master glands, because बाकी glands जो function करती हैं कहीं ना कहीं उनको control करना pituitary gland के हाथ में होता है. That is why it is called master gland. Next question is define. These are the definition easily written in your note, books as well. तो अगर आपने बुक को ध्यान से पढ़ा होगा तो चैप्टर में डेफिनेशन आपको पता है. एडम्स एप्पल, द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट इन मेल्स इज कॉल्ड एडम्स एप्पल. इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं एंड ऑल्सो दी लैरिंक्स कहते हैं. ये क्या है? यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जब वाइब्रेट करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है. इफ यू विल प्लेस हैंड on your throat portion, so you can feel the vibrations. That vibration is when you speak, fine. So this is due to the presence of voice box, जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं. गर्ल्स में नहीं होता है, बॉयज में प्रोट्रूडिंग होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा इट इज इजीली विजिबल. एडोलसेंस, as we all know that in the period of teen age, ठीक है. So teen age वैसे it is from 13 to 19, but we consider it from 12 to 20 as well. So where reproductive maturity is there. Puberty, as the adolescence period completed, this 12 to 20 completed, so this stage of being mature is called puberty. Age at which reproductive systems become functional. Adolescence में ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, मीन्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, ठीक है. पुबर्टी इज दैट स्टेज वेयर वी कैन से दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम्स फंक्शनल बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स. नेक्स्ट इज व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, व्हाई दे आर कॉल्ड सो, स्टेट देयर functions. So first of all, what are sex hormones? So basically those hormones
which can which can help to identify the male and female characteristics. मेल एंड फीमेल जो ट्रेट्स हैं वो सेक्स हार्मोन से पता चलते हैं. तो सेक्स हार्मोन्स बेसिकली आर यूज्ड टू डिटरमिन एज वेल वेदर द चाइल्ड इज मेल और फीमेल. तो इसीलिए हम उसको इससे रिलेट करते हैं. हार्मोन्स विच कॉन्स्टिट्यूट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? लुक, प्राइमरी कैरेक्टर्स होते हैं द सेक्स ऑर्गन्स. फाइन, हमने किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो उसके बेस पे हम बताते हैं कि what are the organs of male and female. That on that base we can distinguish boy and girl. अगर हमें ना पता हो, means we have not the knowledge of reproductive system, then how we can identify that it is a male, it means it is a girl or a boy from secondary sexual. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहाँ से कैसे पता चलते हैं? लाइक ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, चेंज इन वॉइस, हाइट, शेप ऑफ बॉडी. फाइन, सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी कैन बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बॉय फ्रॉम अ गर्ल. और ये कैरेक्टर्स कौन मैनेज कर पाता है? थ्रू सेक्स हार्मोन्स वी कैन से दिस. They are called so because these are released by sex organs. Next question था आपका कि why they are called so. Sex hormones इनको क्यों कहते हैं? Because these are released by the sex organs like testes and ovaries. Testes in male and ovaries in female. A boy is distinguished from a girl due to these hormones. Their function is to develop the secondary sexual character in boys and girls. So basically sex hormones का function क्या होता है? बॉयज एंड गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल्स को डेवलप करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन क्रोमोसोम्स. व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम्स? हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्रोमोसोम्स. डोंट मिक्स दीज टू क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन सेक्स हार्मोन्स हैं एंड ये क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है. Inside the nucleus some chromosomes are there. हमने सेल चैप्टर में किया था कि क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. तो उन क्रोमोसोम्स में दो मीन्स टोटल हमारी टोटल ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 पेयर. पेयर मीन्स 2 in each, लाइक 46 क्रोमोसोम. अगर हम इसको इंडिविजुअल देखते हैं तो 23 पेयर्स हैं, जिसमें से 1 पेयर मीन्स 22 अलग होते हैं. 1 पेयर वो वाला होता है जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, विच हेल्प्स टू डिटरमिन द सेक्स ऑफ चाइल्ड. सेक्स ऑफ चाइल्ड मीन्स डिटरमिन दैट बेबी इज बॉय और अ गर्ल. तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? X and Y. These are two different ones, X and Y. When they fuses, आपने इसमें किया होगा ये like this. See, male having X and Y chromosome, female having XX chromosome. ठीक है, पेयर है ये. मीन्स मेल में जो पेयर है वो XY का पेयर होता है और फीमेल में जो पेयर है वो XX का पेयर होता है. So female has 2 X chromosome and while male has 1 X and 1 Y chromosome. Sex chromosomes are different from other as they help to determine the sex of unborn child. अगर ये वाले हॉर्मोन्स नहीं होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, we cannot determine the sex of unborn child. तो इनका जो मेजर एंड द पेक्यूलियर फंक्शन है वो क्या है? It helps in the determination. Next is what is adrenaline. एडर्नलिन, थोड़ा थोड़ा नाम ही रिलेट हो रहा है विद एडर्नल ग्लैंड. ठीक है, मीन्स जो हार्मोन एडर्नल ग्लैंड सीक्रेट करती है उसका नाम होता है एडर्नलिन. व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन. इसको स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं? किसी भी चीज को हम क्यों उसके एक पर्टिकुलर फीचर के साथ रिलेट करते हैं? बिकॉज इट परफॉर्म्स दैट, वो फंक्शन वो पर्टिकुलर परफॉर्म करती है. हाउ इट हैपेंस? It is a hormone which maintains correct salt balance in the blood. It is also responsible for regulation of protein, carbohydrates and fat metabolism in the body. So this is the basic function of the adrenaline कि क्या function करता है. And
एंड इसके साथ आप एक लाइन ऐड कर सकते हो दैट इट इज रिलीज्ड बाय या इट इज सीक्रेटेड बाय एडर्नल ग्लैंड, राइट। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं क्यों है, एज इट हेल्प्स टू calm down when one is depressed or worried. It is also called emergency hormone. Why emergency hormone? Because it activates at per the situation. So like you feel nervous, एकदम से टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, नर्वस हो जाते हैं, स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है. Why it happens? It is not regular because of the activation of adrenaline hormone, right? इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं. इट कैन काम डाउन द स्ट्रेस लेवल ऑफ वंस बॉडी. लिस्ट द चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक्स प्लेस इन द प्यूबर्टी. ये आपकी बुक में भी दिए हुए हैं एज इट इज पॉइंट कि प्यूबर्टी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं. तो ये चेंजेस कौन से हैं, इंक्रीज इन हाइट, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ग्रोथ ऑफ हेयर एंड मॉस्टैचेस, बियर्ड, underarms, etc. Increased activity of sweat and sebaceous glands. Sebaceous glands are also called oil glands. जैसे कि आजकल गर्ल्स को बड़ा होता है ना, फेस ऑयली लग रहा है, दैट ऑयली इज नॉट ड्यू टू द वेदर एंड ऑल, बट इट इज ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ sebaceous hormones in this particular age. Next, difference between menarche and menopause. Again the topic is in your book. Menarche, it is the starting of menstrual flow at the age of 11 to 13 in females only. And menopause, the stoppage of menstrual flow in adult females after the age of 45 years. Nothing to explain here. Why people get acne and pimple at the time of puberty? So this is very general one कि pimples हो जाते हैं. The other name, the name of that pimple is acne. So basically ये क्यों होते हैं? Due to the enlargement of increasing of oil productivity in the body. तो ये अब oil कहाँ से आता है? Sebaceous glands से, ठीक है. So it happens so because of increased activity of sebaceous glands. नेक्स्ट आपने ये टेबल किया ही होगा. इट इज नथिंग, ग्लैंड्स दी हुई हैं आपको डिफरेंट, पिट्यूटरी, थायराइड, पैंक्रियाज, एडर्नल, टेस्टिस एंड ओवरीज. यू हैव टू टेल द हार्मोन्स. पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? ग्रोथ. थायराइड से थायरॉक्सिन, पैंक्रियाज, इंसुलिन, एडर्नल, एडर्नलिन, टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज, एस्ट्रोजन. इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये आप लर्न. तो ये वाला जो आपको टेबल है ये आपको एज इट इज तो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है, बट इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं. लाइक व्हाट इज पैंक्रियास, द नेम ऑफ द हार्मोन सीक्रेटेड बाय इट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन. ठीक है, तो आपने ये टेबल इंडिविजुअल क्वेश्चन बना के ही लर्न करना है. Next, how the sex of unborn baby is determined. So as I have told you, कि the male having XY chromosomes and the females having XX chromosomes. So how it happens? So when the sperm that carries X chromosomes get fused with the X, so what will be the hormone? It will be XX, and if Y will fuse with X, that will be XY. तो अब यहाँ से पता चल जाता है अगर XY क्रोमोसोम है तो इट मीन्स द बेबी इज मेल, बेबी इज बॉय. अगर XX है देन बेबी इज गर्ल. तो इफ यू विल रीड इट यू विल गेट योर आंसर. सो दिस इज द डायग्राम. होप यू हैव डन इन योर कॉपीज एज वेल. अगर नहीं किया होगा तो आपकी बुक में भी ये बना हुआ है. दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 10. आपको नोटबुक में से शॉर्ट एंड लॉन्ग आएंगे एंड जो बाकी के ऑब्जेक्टिव हैं दैट विल बी फ्रॉम योर वर्कबुक. सो वर्कबुक आप तभी सॉल्व कर पाओगे इफ यू विल थॉरली रीड द चैप्टर.